Good morning, class 9th students. This is the fourth lecture of chapter number 1 of geography. And here we will try to understand India and her relation with the neighboring countries. And secondly, why Indian Ocean is named after India. So let us proceed with the help of map. This is a world political map. You can see here India and its neighboring countries. First, we have discussed about the countries which are making borders with India. So you know about Pakistan is making border, Afghanistan, China with Tibet, Myanmar, Nepal, Bhutan, Bangladesh, and then two more islands. They are not making boundaries, but they are very near to India. Here you will find out Maldives, just down of Lakshadweep Island, and one more is Sri Lanka island, not making boundary but very close to India. So these are the countries which are referred as South Asian countries. Besides, so that we have already discussed also. These all countries are referred as South Asian countries, or these are referred as Indian subcontinent. Why? Because these were generally parts of India, and at the same time because of economic connection from India to these countries, and most important, social and religious contacts with these countries. Like Pakistan and Bangladesh, as we know, emerged from India only. Islam from India mushroomed towards these countries. Nepal, a Hindu nation, naturally its culture has close connection with India. Then Sri Lanka, because of Buddhism and because of this Tamil culture here, it is connected with India. Maldives, because of Islam as religion of Maldives, is also because it came from India only. So that's why these countries, Bhutan also Buddhism from India only. So because of all these things also you will find out that these countries are also referred as Indian subcontinent, because physically they are connected through Himalayas, then through economic activities, through religious activities, and through cultural activities. These countries are connected with India since time span. Now next, the neighboring countries of India. So you will find out, here you will find out African countries, here you will find out Central Asian countries, and here you will find out Southeast Asian countries. So African countries you will find out, here you will find out Saudi Arabia is, here African one. You will find out Somalia is there, Kenya, Zanzibar, and many more countries are here. And these are African countries, East African countries which were connected with India through economic activities. उसी तरीके से दिस इज आवर सेंट्रल एशियन कंट्रीज, दीज आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ इंडिया थ्रू, चाहे वो रिलीजन का कॉन्टेक्स्ट हो और बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, चाहे वो लैंड से बिजनेस रहा हो, ट्रेड एंड कॉमर्स रहा हो, या दैट मे बी थ्रू ओशन. सो ये भी कंट्रीज़ हैं जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, अरेबियन कंट्रीज़ हैं, दे आर कनेक्टेड विथ इंडिया. इन्हीं अरब्स की वजह से, यहाँ डोमिनेशन की वजह से इसको बोला जाता है अरेबियन सी. उसी वजह से दिस इज आवर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़. इसका भी इंडिया से कनेक्शन रहा है बिकॉज ऑफ हिंदुज़म, बुद्धिज़्म. तो ये कंट्रीज़ भी इंडिया से काफ़ी कनेक्ट रहे हैं. अब यहाँ नीचे में आप देखते हो तो हियर यू विल फाइंड आउट इंडियन ओशन, वास्ट इंडियन ओशन, जिसका नाम इंडिया पर रखा गया है. दो मेनी कंट्रीज आर देयर. ये चाइना है, इज़ फार बेटर देन इंडिया. तो चाइना ओशन क्यों नहीं इसको बोला जाता है, क्यों इसको इंडियन ओशन बोला जाता है? तो ये क्वेश्चन विल आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन दैट व्हाई इंडियन ओशन इज़ नेम्ड आफ्टर इंडिया. तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं. जैसे एक पॉइंट है सेंट्रल लोकेशन, यानी इंडिया की जो लोकेशन है इंडियन ओशन में वो सेंट्रल है, बीच में है. इंडिया सबसे बड़ी कोस्ट लाइन भी इंडियन ओशन में बनाती है. उसके अलावा जो हमारे का हिस्टोरिकल डोमिनेशन है, और हमारे यहाँ से कल्चर, रिलीजन, आइडिया सब कुछ गया हुआ है. एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं. तो पहला करते हैं सेंट्रल लोकेशन. तो ये वास्ट इंडियन ओशन अगर आप देखते हो तो इंडिया की लोकेशन लगभग सेंटर बीच में है. ये देखो, ये साइड में है अफ्रीका, और ये साउथ ईस्ट एशिया भी साइड में है. तो इंडियन ओशन अगर आप मान यहाँ से हम इसको देखते हैं, इस लाइन पर देख लो आप, तो इस लाइन पे देख रहे हो आप, या इक्वेटर ही जो हमारा ये है, यहाँ पे इंडिया बीच में आ रही है इंडियन ओशन के, और ये एक साइड में है, यानी वेस्टर्न साइड में आता है, और ये ईस्टर्न साइड में आता है. तो इंडियन ओशन में ये हिस्सा सेंट्रल है, ये हिस्सा दूर का हिस्सा है.
यानी यहाँ से आपको जाने के लिए मान लो अगर हमें लगता है मान लो 1000 किलोमीटर, तो यहाँ से भी यहाँ जाने में 1000 किलोमीटर लगता है, लेकिन अगर हम लोग इंडिया में है तो ये सीधा 500 किलोमीटर में डिवाइड हो जाता है। तो ये एडवांटेज है इंडियन जो है इंडिया का इंडियन ओशन में कि हम लोग बीच में है, इसलिए हमारे ये एरिया इक्वल डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट है। और अगर यहाँ का लोकेशन है, यहाँ से ये हिस्सा दूर है और यहाँ से ये हिस्सा दूर है। इंडिया के केस में ये सीधा हाफ हो जाता है, हाफ हाफ में डिवाइड हो जाता है। ये क्यों संभव है? बिकॉज ऑफ इंडियन ओशन। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि आवर ट्रेडर्स इन एंशिएंट टाइम्स वर एबल टू रीच ऑल दीज एरियाज, क्योंकि इनको फ़ायदा था क्योंकि हमारा ये सेंट्रल लोकेशन था। इतना ही इंडिया वॉज एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव। तो जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते थे, जो हमारे स्पेशली कॉटन है, सिल्क है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पूरे इस एरिया में हम लोग हमारे मर्चेंट्स इसको सेल किया करते थे। उसके अलावा हमारे कोस्ट लाइन भी काफ़ी बड़ी है। आप कोई भी कंट्री जहाँ देख लीजिए तो सबसे बड़ी हम ही लोग इंडिया हैं और हमारी कोस्ट लाइन भी बहुत बड़ी है। तो वी हैड न्यूमरस कोस्ट लाइन्स। तो इन कोस्ट लाइन से यानी ये जो कोस्टल एरिया से हम लोग या जो हमारे पोर्ट्स थे, यहाँ से हम लोग वी कैन ट्रेड टू द डिफरेंट कंट्रीज़। तो ये सब कुछ पॉइंट्स जो हमें हेल्प करती थी जो है पूरे इस एरिया को हम लोग को डोमिनेट करने में, इसलिए इस एरिया को बोला गया है इंडियन ओशन, इसी डोमिनेशन को देखते हुए। उसके अलावा साथ साथ इसका हमारे कल्चर भी गया, हमारे आइडियाज़ भी गए। जैसे हमारे यहाँ से रिलीजियस टेक्स्ट है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, हमारे यहाँ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सब इन कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और साथ में यहाँ से भी बहुत सारे कल्चर है, आइडियाज़ हैं, वो सब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसलिए आप देखते हो इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंस रही है, और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए दिस ओशन इज़ नेम्ड आफ्टर इंडिया। थैंक यू।